किसान और जवान दो नहीं है। पहला भी असी किसान सी, पेंशन आने तो बाद भी किसान है। इंडिया गेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਆ ਠੰਡ ਕੀ ਮਾਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, मैं कहना नहीं चाहता, सुनो मेरे वीर जी मैं कहना नहीं चाहता, पर जो डांगा इन्ना मारियों पासा नहीं भुल्ले। रोज उठते हैं मन की बात करते हैं, रात को उठते हैं सोते हैं सोचते हैं सुबह मन की बात। क्या जल्दीबाजी थी इस बिल को लाने की? मैं पूछता हूं कि आखिरकार आप कहते हैं मैं चौकीदार, चौकीदार कौन? सड़क पे खड़ा सिपाही या आप? इससे साफ साबित होता है जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय कि आप कारपोरेट घराने के चौकीदार हो सकते हैं। पहले लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। न सत्ता है न विपक्ष है, इस देश का विकल्प एकमात्र जवान और किसान है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और मैं कहता हूं कि विनाश काले विपरीत होती है। अगर इस देश के किसान अगर खालिस्तानी हैं तो मैं सबसे पहले खालिस्तानी हूं। संसद तुम्हारा है, सड़कें हमारी हैं। असली भारतीय संसद तय करेगी क्या होगा। जब जन ही नहीं रहेगा तो तंत्र किस बात का, जब लोक ही नहीं रहेगा तंत्र किस बात का। हम तिरंगा लेके जाएंगे, हम वहां वंदे मातरम बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, परेड देखेंगे। क्या हमको मनाही होगी? क्या लोकतंत्र का हनन नहीं है? कौन रोक सकता हमें? हमारे हाथों में हथियार, झंडे होंगे, तिरंगे होंगे लाखों करोड़ों की संख्या में, और हम जाएंगे। रोकिए। आप लोग वर्दियों में आगे जाएंगे, आप लोग के भाई जो हैं जवान, क्या उनकी हिम्मत पड़ेगी आप लोगों के ऊपर सरकार के इशारे के ऊपर लाठीचार्ज? 26 जनवरी को सभी पूर्व सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने बोल दिया है सबको, सब इकट्ठा होंगे और संविधान के तहत सबको अधिकार है परेड देखने जाने का, और तिरंगे हाथों में लेके और जयकारा लगाते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। हम लोग आगे रहेंगे, पीछे हमारे सैनिक किसान भाई रहेंगे, और उसके पीछे हमारे देश की जनता रहेगी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰਡ ਛਪਾ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਹੌਲਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਮਿਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਵਾਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਆ ਠੰਡ ਕੀ ਮਾਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, मैं कहना नहीं चाहता, सुनो मेरे वीर जी मैं कहना नहीं चाहता, पर जो डांगा इन्ना मारियों पासा नहीं भुल्ले। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? मैं जी 2 ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਇੱਕ, 18 ਸਾਲ ਇੱਕ।
ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਫੌਜੀ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪੱਕੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਮੈਂ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 21 ਪੰਜਾਬ ਨੇ 14 ਪੋਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਏ ਹੈ, 14 ਪੋਸਟ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਫਰੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਸਾਂਗੇ। बिल्कुल जी। सर क्या नाम है जी आपका? मणिदेव चतुर्वेदी, मैं बनारस से आया हूँ। पंजाबी समझ लेते हो, हिंदी में बात करनी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप पंजाबी बोलिए, मैं हिंदी में आपको प्रश्नों का जवाब दूंगा। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? बिल्कुल, जब जवान भी तो किसान का बेटा है, जब उसका बाप आज रोड पे सड़कों पे है तो वो क्यों नहीं आएगा, इसलिए हमें आना पड़ा और हमें आए हैं। और इन नीतियों के वजह से अगर देश में कोई मौत होती है, कोई दुर्घटना घटती, कुछ भी होता है तो भारतीय संविधान के मुताबिक उसकी जिम्मेदार सरकार होता है। तो सरकार जिम्मेदार है ये हमें रोडों पे आने के लिए। सरकार जिम्मेवार है रोडों पे आने के लिए। जब रोडों पे आए हैं 70 के करीब किसानों के बेटे और किसान शहीद हो चुके हैं, उसका जिम्मेवार कौन, किसको मानते हैं? बिल्कुल, इसकी पूरी जिम्मेदार कहते हैं, मानवाधिकार कहता है कि जब स्त्री या पुरुष जन्म लेता है तो उसका अधिकार बनता है कि वह अपना जीवन यापन सुखमय और आनंदपूर्वक बिताए। समाज और सरकार का दायित्व बनता है कि उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे। अगर किसी को इस प्रकार की कष्ट होता है तो इसकी पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, वहाँ का डीएम जिम्मेदार है। अगर मौतें हो रही हैं तो निश्चित रूप से यहाँ की सरकार जिम्मेदार है पूरी तरह से। और उनको आज इसको देखते हुए सबको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और फिर से चुनाव कराने चाहिए, फिर से सारी बातें हो संसद में। चुनाव की बात की है आपने। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कहती है लोग हमें चाहते हैं, हमने नोटबंदी का फैसला बढ़िया किया और जो धारा 370 तोड़ी वो बढ़िया किया, इसलिए हमें लोगों ने दोबारा सत्ता में लाया है। क्या सोचते हैं आप, लोगों ने लाया क्या या पीछे कोई और राज है? निश्चित रूप से लोगों ने एक परिवर्तन, देखिए 1947 से लेकर के अभी तक किसान छला गया है। पहले हमने अंग्रेजों की गुलामी की, उसके बाद मुगलों की, उसके बाद अभी 1947 से लेकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, तरीका नहीं है। उनको तो 5 साल की सत्ता देते हैं, लेकिन ऐसा राइट टू रिकॉल नहीं है कि आज ही पूरे देश में एक बटन दबे कि ये सरकार रहेगी कि जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, और रोज उठते हैं मन की बात करते हैं, रात को उठते हैं, सोते हैं, सोचते हैं, सुबह मन की बात। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कितने आंकड़े वो दिखाएं, कितने किसानों से पूछा गया, कितने वैज्ञानिकों से पूछा गया, कितने बुद्धिजीवियों से पूछा गया, कितने लोगों से क्या विपक्ष से चर्चा हुई, कुछ नहीं हुई। तो आप एक पत्रकार हैं, अपनी समस्या आप जान सकते हैं, बखूबी रख सकते हैं। मैं एक फौजी हूँ, फौजी की समस्या जान सकता हूँ, तो उनसे संबंधित लोगों से पूछा जाए। जबकि रात को ही सोच के रात को अध्यादेश ला गया, ऐसी क्या जरूरत थी? जब ये देश कृषि प्रधान देश है, पूरी ये कृषि पर डिपेंडेंट है, जीडीपी यहाँ की, तो इस पर पूरा संसद में बातचीत होनी चाहिए थी, प्रश्न उत्तर होने चाहिए थे, सबसे विचार विमर्श करना चाहिए था। आखिर क्या जल्दीबाजी थी इस बिल को लाने की? मैं पूछता हूँ कि आखिरकार आप कहते हैं मैं चौकीदार कौन? सड़क पे खड़ा सिपाही या आप? इससे साफ साबित होता है जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय कि आप कारपोरेट घराने के चौकीदार हो सकते हैं, इस देश के नहीं। इस देश का असली चौकीदार और अन्नदाता किसान और जवान है। आपकी बात में 2 सवाल लूंगा मैं। आपने कल अंग्रेजों की गुलामी और मन की बात, गुलामी की बात की आपने। अभी हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर विदेशों में जाते हैं लाखों रुपया लगा के कि वहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम है, पूरी जो मानवता की वो कदर करते हैं, समय की कदर करते हैं। वो अंग्रेज, गोरे अंग्रेज सही थे या अभी जो काले अंग्रेज है यहाँ पे वो सही हैं? पहले लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। न सत्ता है न विपक्ष है, इस देश का विकल्प एकमात्र जवान और
किसान है। हमारे परदादा भी इस रोड पे थे, हमारे दादाजी भी इस रोड पर थे, हमारे पिताजी भी इस रोड पर हैं और आगे मेरी औलादें रहेंगी। आखिर कब तक? हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो। हम आज चाहें उस सरकार को रिकॉल करके वापस बुला लें। ऐसी व्यवस्था की बात करनी होगी सत्ता परिवर्तन के साथ साथ, तभी इस देश की गुलामी जाएगी। सांसद तुम्हारा है, सड़कें हमारी है। किसान बोले इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, वो लोगों के लिए ईमानदार थे। अपने लोगों को जो अत्याचार अब हो रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, वो नहीं था हो रहा उस समय। बिल्कुल, ये तो इस समय हिटलर, मुसोलिनी, किम जोंग जितने भी तानाशाह हुए, अंग्रेज तो फिर भी ठीक थे। अच्छी सड़कें दी, रेलवे दी, आपको स्कूल शिक्षा की देखिए आज उसी पे चल रहा है। हमारे संविधान को दिया, बहुत अच्छे थे, हमारे ने सोचा। लेकिन जो हिटलर, मुसोलिनी, किम जोंग वैसे वैसे तानाशाहों से बढ़कर आज है कि देखिए असली भारतीय संसद, असली भारत की हृदय स्थली यहाँ बैठी हुई है। आज जवान सरहद पे शहादत दे रहा है और किसान इस देश की मजबूती के लिए आज यहाँ पे सड़क पे अपने शहादत दे रहा है। लेकिन आज संसद हमारी मूक दर्शक तमाशा बने देख रही है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और मैं कहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पढ़े हो रामराज की, कभी रामराज की बात करते हैं, हम कहते हैं रामराज में शराब थी। रामराज और नशा कैसे हो सकता है? आपने कोरोना टाइम पर आपने शराब की दुकानें खोली। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुझे बताइए कि जो सरहद पे खड़ा बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी का जवान है, जो दुश्मन की गोलियों से मरता है, क्या सही दर्जा उसको मिला? मैं वाराणसी संसदीय क्षेत्र के जो शहीद हुए हैं पुलवामा, रमेश यादव, अवधेश यादव की बात कर रहा हूं। उनके परिवार को अभी तक पेंशन नहीं मिला, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। सिर्फ आप फूल चढ़ाने, माला अर्पित करने तक सिर्फ शहीद कहते हैं। जब वो मृतक है तो मृतक कहिए। क्यों जनता को भ्रामक की स्थिति पैदा कर रहे हैं? कभी कहते हैं खालिस्तानी है, कभी कहते हैं माओवादी है, कभी कहते हैं पाकिस्तान प्रो है, कभी कहते हैं चाइनीज है किसान। तो जी हाँ, अगर इस देश के किसान अगर खालिस्तानी है तो मैं सबसे पहले खालिस्तानी हूँ। अगर इस देश के किसान को कहते हैं कि माओवादी मैं हूँ तो सबसे पहले मैं माओवादी हूँ। इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की आंखें जवान और किसान है। संसद तुम्हारा है, सड़कें हमारी हैं। असली भारतीय संसद तय करेगी क्या होगा। जब जन ही नहीं रहेगा तो तंत्र किस बात का, जब लोक ही नहीं रहेगा तंत्र किस बात का, बताइए मुझे। तो जनता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने 62 जीता, 71 जीता, 74 जीता, हमने करगिल जीता और ये भी जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। हम किसान और जवान इतिहास रचने का काम करते हैं। आप बैठ के पूरी मलाई खाइए, एसी में रहिए, गर्म पानी से नहाइए, हवाई यात्रा करिए, अपने परिवार के साथ फॉरेन जाइए, विदेशों में जाइए, लेकिन हम इतिहास रचते हैं और आप इसका एक मुख्य गवाह बनेगा। पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा जाएगी। जय जवान, जय जवान। किसानां नूं खालिस्तानी माओवादी दस्सण वाले ये वीडियो जरूर देखण ते शेयर भी करन। ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਝਾਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। सर एक लास्ट बात मेरा सवाल रह गया, मन की बात की थी आपने। मोदी साहब मन की बात सुनाते हैं, लोगों में इस बात का रोष है कि लोगों के मन की बात, किसानों के मन की बात, जवानों के मन की बात क्यों नहीं सुनते? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक उदाहरण है कि वार्ता पे वार्ता क्यों हो रही है। भाई जब खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो तो बार बार आप वार्ता करेंगे। वो पूछने जाते हैं कारपोरेट घराने से क्या ये ठीक है, क्या कर दें, बताइए मुझे। अगर कोई आप व्यापार करते हैं, कोई घाटे का सौदा चाहेंगे, जब ये कारपोरेट घराने पूरा इनके चुनाव में पैसा कहाँ से आता है, वही देते हैं। तो ऐसा बिल पास करते हैं इनको फ़ायदा हो। तो आज कारपोरेट घराने को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो आज ये संसद गिरवी है, ये जो सांसद है गिरवी हैं। कारपोरेट घराने के WTO के दबाव में ये काम कर रहे हैं। किसानों से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने सुख सुविधाओं से मतलब है, अपने रहन सहन से मतलब है। इसीलिए वार्ता विफल होगी। 26 जनवरी
भारतीय संसद ये तय करेगी, ये जन इस तंत्र को तय करेगा, ये लोक इस तंत्र को तय करेगा कि किस प्रकार हमारा देश चलेगा, किस प्रकार यहाँ की संविधान, किस प्रकार व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। 26 की बात की है तो सरकार ने भी पूरी तरह फौजी जवानों को लगा रखा है हथियारों के साथ बॉर्डर पे रोकने के लिए। क्या लगता है कि किसानों को आगे जाने देंगे? ये किसानों के बेटे ही हैं। बिल्कुल। इस प्रश्न के उत्तर में आपको एक याद देना चाहूंगा। 15 दिन पहले दिखा रही मीडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्दा, इन्होंने कुछ शाहीन बाग जोड़ा, बोला सड़कें जाम हो रही हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, बोला नहीं ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गलत साबित नहीं किया। हम किसान किस संविधान के तहत जवान नहीं जा सकते, हम तिरंगा लेके जाएंगे, हम वहाँ वंदे मातरम बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, परेड देखेंगे। क्या हमको मनाही होगी? क्या लोकतंत्र का हनन नहीं है? कौन रोक सकता है हमें? हमारे हाथों में हथियार, झंडे होंगे, तिरंगे होंगे लाखों करोड़ों की संख्या में, और हम जाएंगे? रोकिए। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, मानवाधिकार आयोग विश्व बैठा है, पूरे विश्व की जो राजनीति है वो बैठे हुए हैं। हम तो जाएंगे भाई, देखने का सबका अधिकार है। हम दर्शक दीर्घा में खड़े होकर देखेंगे, क्यों रोकेंगे हमें? बताइए किसने कहा है? हमारे हाथ में तिरंगा, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा होगा। हम वो आज़ादी चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा। आज भारत माता हमारी बेड़ियों में जकड़ी है। जब जब संध्या होता है, अवलोकन करता हूँ, मेरा मन तड़प उठता है। आज भी मेरी भारत माता बंधन में है, उनको काटने के लिए हम सभी को आगे आना ही होगा। तभी उनको मुक्ति मिलेगी, और सही मायने में तभी उनको आज़ादी मिलेगी, और सही मायने में तभी हम सब आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। जब आप लोग वर्दियों में आगे जाएंगे, आप लोग के भाई जो हैं जवान, क्या उनकी हिम्मत पड़ेगी आप लोगों के ऊपर सरकार के इशारे के ऊपर लाठीचार्ज? देखिए, एक बड़ी कटु सच कहता हूँ, वो जवान कौन है? वो सिपाही। ब्यूरोक्रेसी की बात, मैं लाल फीताशाही की बात नहीं कर, जो ड्यूटी करते हैं, जो शान करते हैं, ड्यूटी जो पोस्ट पे जाते हैं, वो हमारे बेटे हैं। जवान कौन बनता है? जो सुबह उठ के 4 बजे लंबी दौड़ लगाता है, ठंडे पानी में नहाता है, पेड़ पर खेलता है, छोटे छोटे पत्थरों से सर्पों को मार देता है। वो सरहद पे रह सकता है? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं। जानते हैं वो क्यों ऐसा करता है? वो जानता है मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं। गरीबी है। 1825 का ब्रिटिश कानून सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड में लागू है। अभी भी हम भारतीय संविधान के दायरे में नहीं है। हम भी जीना चाहते हैं, और अपनी सत्ता चलाने के लिए हमें, अगर हम सही बोलते हैं कुछ भी, हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। हमें बर्खास्त कर दिया जाता है, इसलिए मजबूरी में मरता क्या न करता, क्योंकि उसके बाप अभी मजदूरी करते थे, नौकरी मिली है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बहन की शादी करना है, माँ की दवाई का इलाज करना है, कहाँ चलाएगा? मजबूरी में हम पे खुद डंडे चलाता है। जानता है ये गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है क्या गलत है, क्या सही है, और वो कानून हमें जकड़ के रखता है। ऐसे कानूनों से मैं चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट, मैं चाहूँगा देश के बुद्धियों से कि हमें 1825 जो ब्रिटिश कानून है उससे निजात दिलाए, हम भी खुली हवा में सांस ले सकें। बिल्कुल जी। सर, क्या नाम है जी आपका? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा। सूबेदार साहब, आपने मेडल बहुत है, बहुत जंग लड़ी होंगी, ये जो आज हकों की जंग लड़ी जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जब कभी भी ये पृथ्वी सूरवीरों से खाली नहीं हुआ है, और जब जब आफत आई है धरती पर, कोई न कोई पैदा हुआ है, अवतार लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले कभी भी सैनिक आंदोलन में नहीं शामिल हुए थे, लेकिन आज जो है कि सैनिकों का आंदोलन में शामिल होना यह जाहिर होता है कि देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा से ऊपर हो गया है, और हम इसको मिटाने के लिए अब सैनिक तो हमारे सीमा पर दूसरे देशों की रक्षा करेंगे, और अंदरूनी भ्रष्टाचारियों और चोरों से निपटने के लिए हम पूर्व सैनिक एकत्रित हो गए हैं, और किसानों की, आम जनता की हम मदद करेंगे। और मैं देश को यह आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे देश जाग जाओ, और यही मौका है कि इनको उखाड़ फेंकने का, ताकि अब दोबारा ऐसा आंदोलन, बड़ा आंदोलन न हो सके, और ये सत्ता परिवर्तन नहीं, अब व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा, और इसके साथ साथ ही सारी बुराइयों को दूर किया जाएगा। बिल्कुल जी। सर, की नाम जी? हरविंदर सिंह राणा जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जितनी भी शहादतें हुई हैं किसानों की, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सरकार ने अभी तक कोई श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द भी नहीं कहे किसी भी मंत्री ने। कितनी शर्म की बात है, पूरा देश देख रहा है, तो लोगों के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में हुआ उस पर चिंतन उन्होंने किया है। जी, लेकिन ये है कि पहले अपना घर तो संभालो। अपना घर तो संभल नहीं रहा और चले हैं विदेशों में संभालने के लिए। तो ये तो देश की जनता को अब चिंतन करना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। किसान अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बनना चाहिए और ये तीनों कृषि बिल जो काले कानून हैं ये वापस होने ही चाहिए। की नाम है बजुर्ग? ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। सूबेदार साहब की मानते हो सरकार क्यों अड़ी हुई आ? ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਜੋ बीजेपी गवर्नमेंट है ये अडानी अंबानी तो पिछले 5 साल में इतना पैसा ले चुकी है कि उसके आगे बिकी हुई है। ये उसको खुश करने के लिए इसने ये काले कानून लाए हैं, ये इनको वापस करने चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान खाना जंगी की ओर बढ़ा रहे हैं। जो गवर्नमेंट गलत स्टेप है। ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं वोटा वो ईवीएम की देन है, ईवीएम की नजायज पैदाइश है ये गवर्नमेंट। ईवीएम का पीएम है, ईवीएम की नजायज पैदाइश है ये गवर्नमेंट। ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਹੋ ਰਹਿਣੀ, ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ये ऊपर परमात्मा बैठा कंट्रोल करेगा। और खुद ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ? बिल्कुल लड़नी पड़ेगी जी। सब तो बड़ी समस्या हिंदुस्तान वास्ते ये खड़ी हो गई है, जो ईवीएम मशीन जिन्ना चिर है उन्ना चिर इस फिरका प्रस्त गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਆ। ਨਾ ਈਵੀਐਮ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? करनी चाहिए है जी। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ ਅਸੀਂ डटे हाँ। 26 जनवरी तक अगर साडी जी लीडरशिप आ ये डिसीजन लेंदी आ कि बैरिकेड पार करके 26 जनवरी मनानी आ, तो साढ़े जो एक्समैन आ, जो पूर्व सैनिक आ, हम सब फर्स्ट कतार में पहले आगे होंगे, जो किसान हमारे पीछे आएंगे। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ 22/24 ਨਜ਼ਦੀਕ आ गई। 2024 वास्ते हम ईवीएम मशीन के बिल्कुल इसके विरोध में एजिटेशन करेंगे, लगातार जारी रखेंगे। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਾਉਣ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਛਪਾ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਿਓ। जी, 26 जनवरी को सभी पूर्व सैनिक, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने बोल दिया है सबको, सब इकट्ठा होंगे और संविधान के तहत सबको अधिकार है परेड देखने जाने का, और तिरंगे हाथों में लेके और जयकारा लगाते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, हम लोग आगे रहेंगे, पीछे हमारे सैनिक किसान भाई रहेंगे और उसके पीछे हमारे देश की जनता रहेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल। वंदे मातरम। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰਡ ਛਪਾ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਆਰੀ ਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੀ? ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜੀ। सरफरोशी की तमन्ना, मैं कहना चाहता हूँ, बार बार पूछ रहे हैं, जवान कभी बूढ़ा नहीं होता तो जवान ही बोला जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल नहीं संसद में है।
ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਆਕਾਸ਼ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।